आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। बिग फाइव स्लैश ओशन स्लैश 5 फैक्टर मॉडल तीनों सेम ही है। देयर इज नो डिफरेंस। सो ओनली टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेन जो कॉन्टेक्स्ट है इट इज ऑल द सेम। सो जस्ट राइट लाइक दिस, OCEAN. O stands for openness. Openness meaning these guys are open to everything. These guys are open for ideas, open for something new, trying something new, open for knowledge, open for advices. These guys are creative. Openness में एक beauty ये है, openness can be manufactured. Today I'm rigid. Today I'm pretty close-minded, conservative, but tomorrow I can be open. So in personality अगर आपने ईगल, आउल, डव, पीकॉक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज यहाँ पे देखिए, बिकॉज ओपननेस में डव इज नंबर 1, नंबर 2 इज पीकॉक, नंबर 3 इज ईगल, नंबर 4 इज आउल लास्ट में, naturally by birth. Number 2 is conscientiousness. When I say conscientiousness, it is consciousness plus science. What does it mean? It means intellectualization, it means intellect, intelligence, diligent, visualization, big time prediction capability, long term prediction capability, understanding things for future, being in the future already, being in the present, about thinking about the future and understanding about the future already. Then comes in conscientiousness, it is facts, figures, data, analytics, all those things. In this case, number 1 is owl, number 2 is eagle, number 3 is dove, and number 4 is peacock. Like openness, conscientiousness cannot be manufactured. जो जैसे पैदा हो गया. It is left brain dominant activity. Openness is right brain dominant activity. Number 3 is E. E stands for extraversion. Extraversion meaning extrovert, where they get the energy from outside, not from inside. तो जैसे ही extraversion नीचे आता जाएगा वैसे introversion बढ़ेगा. Introversion meaning these guys they get motivated, activated from within. So number 1 extrovert is peacock, number 2 is eagle, then dove, and then owl. Meaning owls are the ones they are most introvert. ये भी like conscientiousness and unlike openness ये change होता नहीं है. It is by birth. Once somebody is an extrovert, he is an extrovert. Somebody is an introvert. अभी आप मेरे से बोलोगे हम तो ambivert है. Ambivert 50-50 हो ही नहीं सकता. 51-49 भी हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 55-45 हो सकता है. तो हम जो ज्यादा है 50 से ज्यादा है उसको हम पकड़ेंगे उनकी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है. Let us move on to A. A for agreeableness. Agreeableness meaning agree to anything and everything that comes to us. So agreeableness naturally dove में बहुत ज्यादा होती है. Then comes peacock, then comes eagle, then comes owl. Like openness, agreeableness also can be manufactured. तो जहां जहां पे आपको ओपननेस और अग्रीएबलनेस दिख गया डज नॉट ऑलवेज मीन कि वो जेन्युइन है. मतलब बाय बर्थ है, देयर ओपन, उन्होंने अपने आप पे काम किया होगा, नॉलेज गेन किया होगा, हेंस दे हैव इंक्रीज देयर अग्रीएबलनेस. तो दैट डज नॉट मीन ऑलवेज कि आउल के ओपननेस और अग्रीएबलनेस बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ विदाउट हैविंग एनी नॉलेज उन्होंने इतना ही है, डज नॉट मीन कि आगे बढ़ ही नहीं सकता. डेफिनेटली बढ़ सकता है विद नॉलेज. ईगल का भी डेफिनेटली बढ़ सकता है, बट एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन एंड कॉन्साइंशियसनेस वो चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा. बट व्हाट डू यू डू विद द टैलेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट इज N फॉर न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म मीनिंग सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी, मीनिंग सुसाइडल थॉट्स, अटेम्प्टिंग सुसाइड, वो कुछ ऐसे नस काट लेना. कुछ ऐसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, 12 साल की एक लड़की आई थी, उन्होंने पूरा बॉडी में ऐसे हाथ में काट कूट के चाकू छुरा चला के लेके आ गए. वेरी पेनफुल. There is a very high possibility neuroticism है, neurotic client है, neurotic behavior है. So big five personality is used to check the personality, the main personality, along with the client is having self-harming tendency or not. इतना ये big five, इतना नहीं है big five. और भी डिटेल में है. इंटर्नशिप में हम काफी डिटेल में पढ़ाते हैं. रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमने काफी डिटेल में बात करी है कि ये अगर 10 लेवल पे है, 10, 1, 2, 3, 5 ऐसे अगर लेवल पे है, उनकी पर्सनालिटी कैसे बनेगी नहीं बनेगी, बहुत ईजी है. आपके फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है ऑनलाइन पे. अगर आपने ये डिटेल में समझ लिया तो आप बिग फाइव काउंसलिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, एंड इज सो इम्पैक्टफुल. तो डोंट थिंक मच, डोंट टेक शॉर्टकट्स. आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी परचेस करिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए. अगर एग्जाम बिल्कुल पास में है, आपने पढ़ाई नहीं करी है, स्किप दैट एग्जाम, गिव इट इन द नेक्स्ट सेशन. 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद आप पढ़ाई करके दीजिए, हमारे रिकॉर्ड लेक्चर्स लीजिए, एंड अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स हो गए, अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनिए. 1 लाख लोगों के पीछे खाली एक ही अच्छा साइकोलॉजिस्ट है.
अगर आप शॉर्टकट मारेंगे अच्छे साइकोलॉजिस्ट आप नहीं बन पाएंगे। अब मार्क्स तो आपको मिल जाएगा 20-30 कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बट अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाएंगे। आगे जाके बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है साइकोलॉजी पढ़ने के बाद खाली डिग्री के चक्कर में वो कर लेते हैं, देन बैक टू स्क्वायर वन, नो इनकम, नथिंग, दे आर अनएबल टू क्रिएट एनी वैल्यू। आप अगर वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे आपकी इनकम नहीं हो पाएगी, ना खुद इंडिपेंडेंट हो पाएंगे फाइनेंशियली, ना किसी को कर पाएंगे, ना क्लाइंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ना यू विल नॉट गेट क्लाइंट्स, कुछ भी नहीं होगा। सो अच्छे से पढ़ाई करिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लीजिए, और हर बार की तरह ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और करवाने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।